بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وتھ نائلہ۔ تو کیسے ہیں آپ؟ جی جناب، آج ہم بنائیں گے بڑے مزیدار کی مٹھائی گاجر کی۔ تو بہت زبردست ہے، اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کی کیسے بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک کڑاہی میں ہم نے 1.5 لیٹر دودھ ڈال دیا ہے۔ اچھا، یہ 1.5 لیٹر جو دودھ ہے بالکل گاڑھا ہے، وداؤٹ پانی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اس کے جتنے بھی بوائل آئیں گے تو ملائیاں اتار کے ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے۔ اچھا، جب دودھ ہمارا پک کے ہاف رہ جائے گا تو ہم اس میں 1 چمچ میدا اور 1 چمچ سرکہ ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، میں نے سرکہ ایڈ کیا پہلے، تو اس میں وہ ویڈیو مجھ سے سکپ ہو گئی ہے۔ ادھر میں نے سرکہ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے 1 چمچ دودھ میں گھول کے آپ کے سامنے میدا ایڈ کر دیا ہے اور 1 چمچ میں نے اس میں چینی ایڈ کر دی۔ تو جیسے یہ ہاف دودھ رہ جائے گا تو یہ سارا پروسیجر ہم نے تب کرنا ہے، اچھی طرح سے دودھ کو پکا لینا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے ہم اسے پکاتے جائیں گے تو یہ گاڑھا ہوتا جائے گا اور اس کا چمچ ہمیں مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ اس طرح اس کو پھیلائیں، پھیلانے کے بعد پھر اسے اکٹھا کریں، یعنی یہی پروسیجر بار بار دہراتے رہیں تو بڑا اچھا سا دانہ سا تیار ہو جائے گا۔ بڑا اچھا دانہ اس کے اندر، جی کھویا بالکل تیار ہونے والی فارم میں جب آنے لگے تو اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کر دیں۔ اچھا، دیسی گھی ایڈ کریں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو بھی بڑھ جائے گی۔ بالکل تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، تو اس میں 1 چمچ بھر کے ڈال دیں۔ دیکھیں، یہ مسلسل ہم نے صرف چمچ ہلاتے رہنا ادھر لازمی، کیونکہ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گاڑھا سا وہ فارم تیار ہونی شروع ہو گئی، یعنی کھویا بننے کی طرف ہمارا دودھ جا رہا ہے۔ تو دودھ تو بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اور کھوئے کی فارم میں یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ تو بس اسی کو اچھی طرح سے ہم نے ہلاتے رہنا ہے۔ تو ہم سپون مسلسل ہلائیں گے تاکہ ہمارا کھویا نیچے ساتھ نہ لگے، اس لیے ہم نے اس میں گھی بھی ایڈ ڈالا ہے۔ ایک تو کھویا بھی ساتھ نہیں لگے گا، اوپر سے خوشبو بھی بڑی اچھی ہو جائے گی کھوئے کی۔ تو یہ بڑا زبردست کھویا تیار ہو جاتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ سے ماشاءاللہ آدھا کلو کھوئے سے بھی زیادہ کھویا تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست، بہت کریمی، بہت رچ ذائقہ ہے اس کا، ٹرائی کریں۔ الحمدللہ کھویا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے برتن میں ڈال کے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ دوسری طرف میں نے 1 کلو گاجر لی ہے، جس کو میں نے پیل ریموو کر کے واش کر کے اور کش کر لیا ہے۔ کش کرنے کے بعد میں اسے ایک پین میں ڈال کے تو اسے کوک کر لوں گی۔ جی، برتن میں کڑھائی میں نے اسے ایڈ کیا ہے۔ ایسے دیکھیں، اس میں پانی بالکل نہیں ہے، گاجریں اپنا پانی خود ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ چینی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مزید پانی، یعنی کہ چینی کا بھی پانی ہو جائے گا اور گاجروں کا بھی پانی ہو جائے گا، تو انہی میں ہی یہ کوک ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور یہ بڑی جلدی کوک ہو جاتی ہے۔ بس ایک طرف اسے ہلائیں اور ہلکے ہاتھوں سے بعد میں اسے ہلاتے رہیں تاکہ گاجر جو ہے نا کش کی ہوئی، یہ ٹوٹے نہ، کیونکہ ہم اگر بار بار اسے بہت زیادہ ہلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اب ہم اسے رہنے دیں گے، یعنی کہ ہلکا سا پانی چھوڑ دیں۔ تو جب پانی چھوڑ کے ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم اس میں گھی ایڈ کر لیں گے۔ گھی آپ دیسی ڈالتے ہیں یا ڈالٹا ڈالتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس میں گھی ڈالیں۔ تو میں اس میں گھی ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی۔ گاجروں کا پانی وغیرہ ہر چیز ڈرائی ہو جائے تو ہم گھی ڈالیں گے۔ اچھا، اسے بھی ہم نے 2-4-5 منٹ پکانا ہے، اچھی طرح سے یہ بھی کوک ہو جائے۔ بس اس کا جو سپون ہے نا، ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں تاکہ گاجریں ٹوٹے نہ۔ وہ آپ کو اندر سے گھی نظر آ رہا ہے نا، اس کا تمام پانی ایگزارب ہو چکا ہے اور گھی میں یہ بن رہی ہیں۔
अच्छी तरह से जब ये भुन जाएंगी तो फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। जी, खोया जो अभी हमने बनाया है उसमें हम खोया ऐड कर देंगे। अच्छा, इलायची पाउडर भी मैंने डाला, वो भी स्किप हो गया, इसलिए मैंने स्पेशल आपके सामने ये इलायची डाल के दिखाई है कि मैंने इलायची भी डाली है। ये जो हमारा खोया है कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त खोया तैयार हुआ है, बिल्कुल दानेदार खोया है, बहुत ज़बरदस्त है। अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बेशक खोया इसी तरह आप बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं, बहुत ज़बरदस्त है। और हलवों में यानी कि मिठाइयों में डाल सकते हैं, हलवे में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में ऐड करके डाल सकते हैं, इवन कि आप वैसे भी खा सकते हैं, एज़ यू लाइक। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको इसके ज़रे मेरे फिंगर पे नज़र आ रहे होंगे कि क्रीमी और दानेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, खोया बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको और तरह से भी खोया बनाना सिखा सकती हूँ। तो इसी तरह हमारी गाजरें अच्छी तरह से भुन गई हैं। कुछ टाइम लगता है, मीडियम आंच पे पकाएं इसे। तो बस जब तैयार हो चुकी हैं हमारी गाजरें, अब मैंने इसमें खोया ऐड कर दिया। तो खोया डाल के फिर मैं मज़ीद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, कोशिश करें कि हल्के हाथों से मिक्स करें कि गाजरों की जो कशिंग है ना वो ख़राब ना हो। तो इसको बिल्कुल हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये पक जाएगा अच्छी तरह से। तो हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया, ये कुक हो गया। थोड़ी देर इसे मज़ीद कुक करेंगे तो हमारा बड़ा प्यारा सा एक हलवा टाइप मिठाई बन गई है। तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, तो नहीं तो इसे मिठाई की फॉर्म में लगाना है तो वैसे खा लें। तो आप एक बर्तन में पेपर को हल्का सा ऑयल लगा के तो रख लें, उसके ऊपर इसे डाल के ड्राई करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ऐसे किस तरह खाया। इसी तरह से अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया। देखिए इसका घी रिलीज़ होना शुरू हो गया, यानी ये कुक हो चुका है। तो इसे मैंने एक बर्तन में, यानी जिस सांचे के ऊपर आपने इसको रखना है, बोल में रख लें, ट्रे में रख लें। मेरे पास ये ट्रे है मिठाई वाली, तो इसमें इक्वल टुकड़ियाँ हो जाती हैं बर्फ़ी जैसी। तो मैंने इसके ऊपर लगा के जो खोया मेरे पास बाकी था वो मैं इसके ऊपर गार्निश के तौर पे लगा दिया है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कोई एक्स्ट्रा गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट नहीं लगाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टेस्टी है कि इसे ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत मज़ेदार और डिलीशियस मिठाई बनती है। आप इस तरह से बनाएं और खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी है, ये मिठाई कैसी लगी है। यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, और वैसे भी सर्दी है, ये जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जैसे ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसे टुकड़ियों की फॉर्म में कटिंग कर लेंगे। देखिए इसमें मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें हमने कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया। ये वाकई बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी है कि इसे ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं है। ये ड्राई हो गई है मेरी बर्फ़ी। तो इसकी छोटी टुकड़ियाँ कर लें या बड़ी कर लें, जैसे आपको पसंद है। तो आप इसकी ईज़िली टुकड़ियाँ ये हो जाती हैं इसकी। बहुत ज़बरदस्त लगती है देखने में भी और खाने में भी। और 1 किलो गाजर से सिर्फ ये तैयार हुई है। 1 लीटर दूध से हमने खोया तैयार किया आपके सामने, और 1 किलो गाजर से हलवा। और बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें अवेलेबल है, घर में दूध होता है और घर में ही ये गाजर वगैरह सब्ज़ी मिक्स आ जाती हैं। तो इसमें ईज़िली चीज़ें हैं, बड़ी आराम से आप इसे बना सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा इसकी टुकड़ी तैयार हो चुकी है। ये मिठाई बहुत ज़बरदस्त है, ये आप खा भी सकते हैं, इवन कि किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है, और हेल्दी भी और साफ़ सुथरी भी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और इजीली पेपर के साथ निकल रही है। तो ये सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि ये चिपकती भी नहीं है नीचे, इजीली पेपर के साथ उतर जाती है और बहुत ज़बरदस्त नाइस।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इतने मज़े के खाने दिए हमें खाने के लिए, उसकी रहमतें हैं, उसकी बरकतें हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का। बहुत ज़बरदस्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है इसका, वाओ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। यकीन माने आप इसे खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे, बच्चे बड़े सब बहुत मज़े लेके खाएंगे। और ये हेल्दी भी है। इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसकी चीज़ें डबल कर लें, बना के फ्रिज में रखें। ये बहुत ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, टूटती हुई कितनी अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार। इवन कि इसके कलर भी बड़े अच्छे हैं। तो आप इसे खाएं, मेहमानों को दें, खुद खाएं, एंजॉय कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।